क्या हुआ जी? स्टिल आज अटेंडेंस इतना पुअर क्यों है? एडमिट let them join first. Okay. So now I'm going to start again the conventional machining process. So in conventional machining process, uh, we are learning merchant circle or the forces on merchant circle. So during the machining, the forces which you have seen in the merchant circle is represented as the resultant forces से तो the after the merchant describing the forces in the merchant circle, the Ernest Merchant theory has came into the picture, and the Ernest Merchant theory has based on the principle that the minimum power consumption is based during the machining. So machining जब होगा तो पावर कंजम्पशन जो है मिनिमम होना चाहिए, ये अर्नेस्ट ये मर्चेंट भी बोला था, लेकिन अर्नेस्ट मर्चेंट उसको डिराइव किया और बताया मर कि मिनिमम पावर कंजम्पशन के लिए कितना शियर एंगल, कितना लैम्डा मतलब फिक्सन एंगल होना चाहिए. So that derivation we will see today. Actually, this picture of merchant circle, where previously this angle is denoted as lambda, but actually this angle is the rake angle. So I have corrected it and posted in your Google Classroom. So remember, this angle is alpha and the resultant R, and all the forces, shear forces, normal to the shear forces, cutting forces, friction forces and normal reaction forces are represented as a resultant force. So every forces we have uh, derived in terms of resultant forces. Now look at how the merchant relations. Slide. So, Ernest Merchant theory Ernest Merchant theory is generally based on the merchant circle, and merchant circle से जो हम फोर्सेस को डिराइव किए हैं वहां से हम फोर्स उठाएंगे और पावर कंजम्पशंस को हम मिनिमम करेंगे. सो द theory involve minimum energy principle. So minimum energy principle means the
power consumption, P means the power, and the power consumption during the machining should be, हमारा पावर मिनिमम लगना चाहिए, तो उसके लिए हम मिनिमम। सो अर्नेस्ट इसी को डिराइव किया, और अर्नेस्ट जो निकाला मर्चेंट के साथ, उसको बोला कि पावर मिनिमम कंजम्पशन होना चाहिए। तो पावर कैसे निकालेंगे, हाउ टू डिटरमाइन द पावर। So power is determined by the cutting force into the cutting velocity. Force into velocity जब हम करेंगे तो that will call the power during the machining, याद रखना है। फोर्स, कटिंग फोर्स हम मर्चेंट सर्कल से ले लेंगे, कटिंग फोर्स मर्चेंट सर्कल से हम ले लेंगे। तो कटिंग फोर्स when multiply by the cutting velocity during the machining भी देख चुके हैं velocity flow diagram से। So velocity of cutting multiply by the force of the cutting force, then it is will be the power. So let us see how the cutting forces can be determined. So power will be equal to the power required to cutting is equal to FC cutting force into the velocity of cutting. Now this cutting force can again be written as in terms of R. See, the cutting force FC will be equal to R into cos. In the merchant circle, you may find the cutting force is equal to cos lambda minus alpha. Cos lambda minus alpha. This one is the cutting force from the merchant circle force diagram. So this cutting force, first unknown is ये lambda alpha, मतलब rake angle and angle of friction will always be provided in the question or in the machining. You know the things that the lambda friction and the friction coefficient दिया रहेगा, friction coefficient से आप tan inverse mu से आप lambda निकाल सकते हैं, and rake angle is always be provided. So R का वैल्यू निकालना है रिजल्टेंट फोर्स का। सो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हमें शियर स्ट्रेस कितना जनरेट हुआ R निकालना है। R निकालने के लिए शियर फोर्स गिवन रहेगा। सो ऊपर से देखेंगे, अब कटिंग फोर्स निकालने के लिए, पावर निकालने के लिए पावर का फॉर्मूला कटिंग वेलोसिटी इनटू कटिंग फोर्स। नाउ द सेकंड थिंग, कटिंग फोर्स हम R के टर्म में लिख देते हैं जो मर्चेंट सर्कल से हमको आया, R इंटू कॉस लैम्डा माइनस अल्फा। नाउ R का वैल्यू कैसे निकलेगा, R का वैल्यू शियर फोर्स से निकलेगा। अब शियर फोर्स कैसे निकलेगा देखो, लेट अस अज्यूम दैट द कटिंग, ड्यूरिंग द कटिंग के दौरान ये आपका वर्क पीस है और ये वर्क पीस कट होने वाला है। सो ये चिप फ्लो होता है और ये टूल होता है आपका। नाउ the width of the work piece will be B. T1 is the uncut chip thickness, this one is the T1, this one is the uncut chip thickness. Shear stress of work material, मतलब जो ये वर्क पीस है वो शियर स्ट्रेस जो इस प्लेन पे जो शियर स्ट्रेस लग रहा है, दैट इज गिवन शियर टॉर्स। नाउ द शियर फोर्स निकालना है हमको एफएस। तो मर्चेंट सर्कल से हम शियर फोर्स निकाले हैं, दैट शियर फोर्स इज इक्वल टू, according to merchant circle diagram, R cos phi shear angle plus lambda minus rake angle alpha, that is the your shear force। हम यहाँ से R का वैल्यू, रिजल्टेंट का वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि यही रिजल्टेंट मुझे कटिंग फोर्स में अननोन है। तो Fs divided by shear force divided by cos
cos phi प्लस लैम्डा माइनस अल्फा. So this is the resultant force. अब resultant force में Fs का वैल्यू, this one is the resultant force. Now इस shear force को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? So shear force को रिप्रेजेंट करने, shear stress given है, shear stress given है along the shear plane, उसमें हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे. यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट सेकंड टाइम लिखने की जरूरत नहीं है. सो शियर फोर्स हम निकालेंगे, एफएस है. अब इस शियर फोर्स को, जो शियर फोर्स को हम शियर स्ट्रेस गिवन है उससे हम क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो शियर जोन का क्रॉस सेक्शन एरिया. अब शियर जोन का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, यहां चेक करेंगे. लेट अस सी. ये शियर स्ट्रेस है, शियर फोर्स निकालना है. शियर फोर्स में शियर स्ट्रेस गिवन है. नाउ द क्रॉस सेक्शनल एरिया अलोंग द शियर जोन. तो शियर जोन तो मेरा ये है, दिस वन इज द माय शियर जोन, जहां से मेरा चिप को फ्लो होगा यहां से ऐसे. सो इस शियर जोन का हमको एरिया निकालना है. तो शियर जोन के एरिया में हम दिस लेंथ, मतलब विड्थ ऑफ द this one, suppose that this is the workpiece in three-dimensional view, is like this thing, and this one is the width, here the shear zone. ये width से, ये width को इस slant height से multiply कर देंगे, तो that is called the shear zone मुझे निकल जाएगा. यही shear area है. This is the shear area where the materials are going to deformed from the workpiece. So this plane is called shear plane and this area is called the shear. So this area is always subjected to shear forces. So इस area को निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा B width और ये slant height निकाल लेंगे. So slant height निकालने के लिए बहुत easy है. This one is the angle phi, the shear angle, and this one is your uncut chip thickness T1. So this point is A and this point is belongs to O. So take us the sin alpha, take the sin alpha, no, sin phi, because this angle is phi, shear angle. So जब sin phi ले लेंगे तो this sin phi is equal to T1 perpendicular T1 divided by AO hypotenuse. Now AO हमें निकालना है because AO is the slant height. So AO is equal to T1 divided by sin phi. Sin phi पता है, T1 थिकनेस पता है, T1 अनकट चिप थिकनेस पता है, हो गया. अभी हमें AO को विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस AO को विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट वी विल फाइंड द एरिया ऑफ द शियर जोन. सो वी विल देन मल्टीप्लाई विद द शियर फोर्स टॉयस. टॉयस मीन्स द शियर स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय शियर जोन एरिया विड्थ into T1 divided by sin phi. Now this one is your, now shear force has been evaluated. shear force निकल गया. अब दिस shear force को हम पुट कर देंगे आपका इसमें. shear force निकल गया टॉयस B T1 by sin phi. ये shear force निकल गया. अब हमें इस shear force को
हम रिजल्टेंट में पुट कर देंगे, यहाँ पे आ जाइए। रिजल्टेंट फोर्स निकालना अब आसान हो गया। दिस वन इज द रिजल्टेंट फोर्स, शियर फोर्स निकल गया मेरा। अब ये हम क्या करेंगे, यूज करेंगे कटिंग फोर्स में। क्योंकि पावर का डेफिनेशन होता है ड्यूरिंग द मशीनिंग कटिंग फोर्स इनटू कटिंग वेलोसिटी। नाउ द पावर का वैल्यू हम निकाल लिए थे नीचे। नाउ कटिंग फोर्स मेरा ये है, आर का वैल्यू निकल गया। आर का वैल्यू एफ एस इंटू cos phi by alpha रिजल्टेंट का वैल्यू, और दिस वन इज द दिस टर्म इज मल्टीप्लाइड है। आर का वैल्यू हम लिख दें यहाँ पे। नाउ आर का वैल्यू जब शियर फोर्स को हटाएंगे शियर स्ट्रेस के टर्म में, तो बी टी वन बाई साइन पाई आया था शियर एरिया। दिस वन इज योर शियर एरिया इनटू शियर स्ट्रेस, दैट इज कॉल्ड द शियर फोर्स। नाउ cos lambda minus alpha and cos phi plus lambda minus alpha. Now this one is your cutting force. This one is your cutting force. Now this cutting force is multiplied to cutting velocity, then the power is be determined. Then power required is cutting force by cutting velocity into cutting velocity. नाउ कटिंग फोर्स मेरा ये है, कटिंग फोर्स को हम यहाँ रख दिए एंड नाउ वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिए। नाउ इट इज द कटिंग फोर्स। सो इन दिस इक्वेशन शियर स्ट्रेस, V थिकनेस, V विड्थ, T1 अनकट चिप थिकनेस है, लैम्डा फ्रिक्शन एंगल है, अल्फा रेक एंगल है एंड VC कटिंग वेलोसिटी है। दिस ऑल आर कांस्टेंट, दिस ऑल आर कांस्टेंट। मतलब शियर फोर्स गिवन है कांस्टेंट है, विड्थ गिवन है कांस्टेंट है, T1 गिवन है कांस्टेंट है, लैम्डा फ्रिक्शन एंगल इफ म्यू इज गिवन इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, अल्फा रेक एंगल प्रोवाइड रहेगा, इट इज द कांस्टेंट वैल्यू। सो ओनली थिंग्स द इज which will be vary the shear zone is called the phi, means the phi is the variable we will be considered by, they will the considered by the earnest and merchant. So this P, the power is a function of phi, we can be right here. So all the constant term we will be write the constant and the phi वाला जितना term है उसको हम लिख देंगे because it is a function of phi में बनाना है। So sin phi and cos phi plus lambda minus alpha. So these two terms are belongs to the shear angle. So हम shear angle phi वाला term लिख देते हैं, बाकी कोई भी term में shear angle नहीं है, so we will consider as a constant. So power is to be minimum. So power को minimum assumptions में दिया है, तो minimum power के लिए क्या करते हैं, कोई भी चीज मिनिमम लाना है इसके लिए क्या करते हैं, किस पाई के वैल्यू पे इट द पावर शुड बी मिनिमम। सो मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट से इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, फिर उसको डबल इक्वल टू जीरो करते हैं, रूट्स निकालते हैं पाई का और उसके डबल डिफरेंशिएशन में पुट करते हैं। अगर पॉजिटिव वैल्यू आया तो इट विल बी नेगेटिव। सो यही चीज हमें यहाँ पे करना है और यही चीजें अर्नेस्ट मर्चेंट ने किया और वो बताए कि phi when the power is only the function of shear angle, then your equation of the power will be this term, means constant sin phi cos phi plus lambda minus alpha। और इसको एक बार डिफरेंशिएट किया और इक्वेट टू जीरो किया, फिर उसके बाद जो वैल्यू निकाला तो उसमें देखा कि आफ्टर कैलकुलेशन द पावर विल बी मिनिमम when your angle consideration will be this one, means this angle is determined by the earnest and merchant. So this angle को हमेशा पूछा जाता है कि 2 phi, बस इतना ही याद रखना है इसमें, ये कैसे आया ये मैकेनिज्म के लिए हम ऊपर से आए, पावर को मिनिमम किए, डिफरेंशिएट की करना है और डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करना है। लेकिन ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंगल हमेशा पूछेगा कि फॉर अर्नेस्ट मर्चेंट थ्योरी द मिनिमम फॉर द मिनिमम पावर कंजम्पशन व्हाट शुड बी द एंगल कंसीडर्ड बाय द अर्नेस्ट मर्चेंट।
सो 2 पाई मतलब डबल ऑफ शियर एंगल प्लस लैम्डा माइनस रेक एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। ये अर्नेस्ट एंड मर्चेंट जो है डिस्कवरी किया। सो ये डायरेक्ट पूछा जाता है। हाँ बोलो। सो मिनिमम पावर कंजम्पशन के लिए 2 पाई जो शियर एंगल है वो 2 पाई जो शियर एंगल है इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस से कर लीजिए, इधर से 90 है माइनस लैम्डा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय, यहाँ से 2 हट जाएगा तो ये डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इक्वेशन शुड ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। 2 pi plus lambda minus alpha is equal to pi by 2 is determined by the Ernest and Merchant for the minimum power consumption। ये अर्नेस्ट एंड मर्चेंट तक इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके बाद अर्नेस्ट सेकंड इक्वेशन दिया, सेकंड इक्वेशन निकाला, इसको नहीं पढ़ना है थ्योरी में, ये हायर स्टडीज एमटेक एंड पीएचडी के लिए इंपॉर्टेंट है। कि अर्नेस्ट एक दूसरा कांस्टेंट निकाला, उसने बताया कि 2 पाई प्लस लैम्डा माइनस अल्फा मर्चेंट सेकंड सॉल्यूशन में ये आया कि ये इज इक्वल टू सम अदर कांस्टेंट m is a machining constant and its value is equal to 70 डिग्री से या 69 से 69 टू 82 डिग्री के बीच में होगा, ये एंगल के टर्म में है। सो द अर्नेस्ट एंड मर्चेंट हैव द सेकंड डेरिवेशन, इट विल बी मशीनिंग कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द मशीनिंग। फॉर ऑब्लिक कटिंग, ये सारा पार्ट जो बात हो रहा है वो ये अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए हो रहा है। ऑब्लिक कटिंग के लिए when the edge of the tool is inclined then the मिनिमम पावर कंजम्पशन के लिए जो निकाला वो ली एंड सेपलर निकाला है, इसको भी याद रख सकते हैं, गेट में पूछता है, आपके सिलेबस में नहीं है। तो the angle is determined by the Lee and Sepler for the oblique cutting is shear angle plus friction angle minus rake angle is equal to 45 डिग्री, मतलब पाई बाय 4। नाउ स्टैबलर जो निकाला, जो स्टैबलर जो अलग अलग साइंटिस्ट है वो जो निकाला वो निकाला फाई shear angle, ये सारा मिनिमम पावर कंजम्पशन के लिए ये सब चल रहा है। For 5 plus lambda minus alpha by 2 is equal to 90 degree. So basically you have to remember Ernest and Merchant derived equation. So this equation for the force consideration कैसे आया? ये आया मिनिमम पावर कंजम्पशन के लिए कटिंग फोर्स को मल्टीप्लाई किए हम वेलोसिटी से। कटिंग फोर्स कहां से लिए? मर्चेंट सर्कल से। कटिंग फोर्स किस टर्म में लिए? रिजल्टेंट एंड द कॉस लैम्डा माइनस अल्फा। नाउ यहाँ पे आर का वैल्यू अननोन था, आर का वैल्यू शियर फोर्स से निकाल लिए। शियर फोर्स का वैल्यू हम शियर स्ट्रेस गिवन है और एरिया शियर जोन का मल्टीप्लाई कर दिए तो शियर फोर्स निकल गया था। शियर फोर्स को पुट कर दिए आर में और आर का वैल्यू पुट कर दिए कटिंग फोर्स में। कटिंग फोर्स निकल गया, कटिंग वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिए। द ऑल द टर्म्स शियर स्ट्रेस बी टी lambda alpha are constant, it is the only variable is the phi is the shear angle and the shear angle हमें मिनिमम पावर के लिए shear angle कितना होगा इसको डिटरमाइन करने के लिए P is the function, मतलब power is a function of phi हमारा आ जाएगा। now this phi को मिनिमम करने के लिए we will to differentiate it and equate it to 0 and then we will find that the Ernest and Merchant find that the 2 pi plus lambda minus alpha is equal to 90 degree is the stable condition for machining for the minimum power consumptions. So basically you have to remember this angle, and for the higher education, higher exam, competitive exam, the other Merchant second equation क्या है, solution क्या है, ये पूछ सकता है। स्टैबलर किस लिए निकाला? ऑब्लिक कटिंग के लिए निकाला था। ऑब्लिक कटिंग का मिनिमम पावर कंजम्पशन के लिए क्या एंगल्स के बीच में रिलेशन होना चाहिए, तो ये दिस रिलेशन। स्टैबलर जो ऑब्लिक कटिंग के लिए निकाला उसका
सभी एंगल, तीन ही एंगल का जनरली काम है मशीनिंग में। पहला रेक एंगल, दूसरा फ्रिक्शन एंगल और तीसरा आपका शियर एंगल। So generally this angle should, you have the relation between the angles you have to be remembered according to different scientists, but the merchant and the earnest will be very important. Now the second things is we have to determine the metal removal rate, to find the metal removal rate. So metal removal rate की बारे में हम बात कर चुके थे नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग में भी. So actually the metal removal rate is here defined as the volume of material removed from a workpiece of time with respect to time, कि इसमें कितना वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकल रहा है चिप्स के फॉर्म में ड्यूरिंग द मशीनिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यूनिट टाइम में, उसको बोलते हैं हम MRR, मटेरियल रिमूवल रेट. रेट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मटेरियल रिमूवल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम ऑफ मटेरियल हैज गोज टू रिमूव फ्रॉम अ वर्क पीस. सो ये स्लाइड दिख रहा है सबको? दिस स्लाइड? यस सर. ठीक है. नाउ व्हाट मटेरियल रिमूवल रेट आपको निकालना होगा. ये क्वेश्चन आएगा, मटेरियल रिमूवल रेट निकालिए किसी भी मशीनिंग में, टर्निंग में, मिलिंग में, ड्रिलिंग में. जनरली इन केस ऑफ टर्निंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, where workpiece is rotated and the tool is feed slowly. So feed velocity is given and the velocity of cutting will also be provided. So velocity of cutting is a VC, and this one is equal to width of the cutting, and this one is equal to thickness, uncut thickness. So it is generally determined cutting velocity, width of the cut and the uncut chip thickness. So velocity of cutting किस में होगा? Actually इसको हमेशा निकालते हैं mm per minute. You also determine in the SI unit meter per second, मीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम पर मिनट या मीटर क्यूब पर सेकेंड as per the question given, but general it will be asked in minute. So mm cube per minute material removal rate का यूनिट होगा. So let us see, अगर वेलोसिटी जो होता है वो मीटर पर सेकंड में होगा. विड्थ, वर्कपीस का जो विड्थ है, दिस वन इज कॉल्ड द विड्थ ऑफ द. सो विड्थ हमेशा लेंथ मीटर में होगा, और टी द थिकनेस विच हैव बोन्स टू कट, this one is uncut chip thickness, this one is T1. So T1 is also in meter length. So this one is called the meter cube per second. So this one is your volume per second, and so your formula is derived as MRR का VC, velocity of cutting, width of the cutting and the thickness of uncut chip material. So you have remembered that the MRR is equal to VC, velocity of cut, width into thickness. Now let us see, sometime this VC, actually we have derived it, but you have to remember the feed and depth of cut. Actually में feed और depth of cut क्या है, इसका एक रिलेशन समझिए. फीड वो वेलोसिटी है जो टूल मूव करेगा, फीड वो वेलोसिटी है जिससे हम टूल को मूव कराते हैं. जनरली टूल फीड जो टूल मूव करता है वो जो
फीड गिवन होता है, जो फीड आपका न्यूमेरिकल में गिवन रहेगा वो रहेगा रिवोल्यूशन, इतना mm पर रिवोल्यूशन। मतलब टूल जो है टर्निंग में, टूल जो है वर्कपीस जो है वो रोटेट करते रहेगा, रोटेट करते रहेगा। सो दैट वन इज कॉल्ड द रोटेशन इज गिवन इन आरपीएम। it will be further be converted this n rpm into the linear velocity by 2 pi n by 60, 2 pi n or 2 pi n means or pi dn, pi dn इस टाइप से हम टूल का लीनियर वेलोसिटी निकालेंगे। लेकिन टूल मूव करेगा एक रिवोल्यूशन में, वो कितना मूव किया इसका हिसाब से हम फीड का यूनिट सेट करते हैं। मतलब फीड का यूनिट होगा जो ये टूल मूव करेगा, टूल मूव करेगा और ये जो वर्कपीस जो रोटेट करेगा, तो mm पर रिवोल्यूशन, मतलब एक रिवोल्यूट जब ये टर्न, जब ये वर्कपीस एक रिवोल्यूशन करेगा उस हिसाब से टूल कितना मूव किया, इसके इसके हिसाब इसी को बोलते हैं फीड वेलोसिटी। फीड वेलोसिटी मतलब वर्कपीस एक रिवोल्यूशन में टूल का जितना मूवमेंट होगा लीनियर डायरेक्शन में, लीनियर डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड द फीड। तो अगर कटिंग वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है और टूल का डायमीटर गिवन है, और टूल कहते हैं वर्कपीस का डायमीटर गिवन है और रोटेशन गिवन है, कितना आरपीएम से वर्कपीस रोटेट कर रहा है, so we will easily find the cutting velocity. It is a nothing but the pi d n, n is given, n is given, मतलब number of rotation per minute, revolution per minute is given. So we can find the cutting velocity, linear diameter, linear velocity of the workpiece or cutting velocity. So you also have to be remember that this cutting velocity is also this MRR, material removal rate, is also determined पहले बताया B into T. So it also be equal to VC F feed into depth of cut. So फर्स्ट में चल जाइए, ऊपर से चल जाइए. So is also it will be also equal to VC cutting force, it will be MRR material removal rate, VCF into D, because sometime if the width and the thickness will not given, वहां पे आपको डेप्थ ऑफ कट कितना दिया हुआ है, VC F into D. This one is equal to meter removal rate. उस जब आपको विड्थ नहीं पता रहेगा और अनकट चिप थिकनेस नहीं पता रहेगा, तो उस समय आपको फीड कितना दे रहे हैं टूल का और डेप्थ ऑफ कट कितना दिए हुए हैं. तो एक्चुअली में होता क्या है कि दिस वन इज योर, इसके पैरेलल लाइन खींच देते हैं. दिस वन इज योर एक्चुअली द T1 which one will be uncut chip thickness, and this is द फीड कितना हम डेप्थ ऑफ कट कितना हमको टूल को क्रॉस हेड से हम थोड़ा सा वर्कपीस के अंदर ले जाते हैं, ताकि जितना मटेरियल रिमूव करवाना है उतना हमको डेप्थ ऑफ कट देना पड़ता है, कटिंग का डेप्थ देना पड़ता है, जितना कटिंग करवाना है उसका डेप्थ देना पड़ता है. सो दिस D इज इक्वल टू द T, डेप्थ ऑफ कट इज इक्वल टू द अनकट चिप थिकनेस. मतलब कहने का मतलब है कि डेप्थ ऑफ कट मतलब जितना हमको चिप को काटना है, जितना हमको वर्कपीस को काटना है, वही तो अनकट चिप थिकनेस होगा. सो पहले हम डेप्थ ऑफ कट अगर दे देते हैं, मैनुअली हम लोग प्रोवाइड करते हैं इन लेथ मशीन, तो दिस D इज इक्वल टू depth of cut is equal to uncut chip thickness, so that we have written T is equal to the depth of cut. Now the width
इज द पैरेलल मोशन। यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ से ये टूल मूव करता है। सो टूल मूव करेगा टोटल फेस विड्थ के, टोटल विड्थ ऑफ द फेस के। सो फे विड्थ को, फीड को हम विड्थ के बराबर पैरेलल मूव करा रहे हैं। सो वी हैव टू एज्यूम दैट विड्थ इज इक्वल टू, width of the workpiece is equal to the feed rate, so that we can also write that the MRR, material removal rate, when width and the uncut chip thickness is not given, VCF into D. Now you are also remember this relation, that VC and VC is gone, and feed into depth of cut is equal to width into uncut chip thickness. So ये रिलेशन भी बहुत यूजफुल होने वाला है आपका अननोन जो भी रहेगा उसको निकालने के लिए। सो दिस रिलेशन यू हैव टू बी रिमेम्बर्ड। सो आज हम दो चीज सीखे। पहला, मटेरियल रिमूवल रेट निकालने के लिए, सो इट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कटिंग, width of the cut into the uncut chip thickness, and it also equal to VC feed rate into depth of cut, जितना depth of cut लगाएं। So when this we will equate these two things, so we will find one another relation. It is called FD, feed into depth of cut into width into the uncut chip thickness. Now so ये दो इक्वेशन ये सारा नोट्स में प्रोवाइड कर दिया गया है और सभी को लिख दिया गया है। ये फीड है, ये डेप्थ ऑफ कट है, ये विड्थ है और ये अनकट चिप थिकनेस है। नाउ इस इक्वेशन से हमारा निकल गया, पहला तो जान गए हम कि VC B इंटू टी इज द MRR, मटेरियल रिमूवल रेट। मटेरियल रिमूव मतलब वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूविंग with respect to time or per minute per second, as the question will be asked. Now the first relation is this one. Once again I am going to take your attendance. It is a very less time. Wait. Hang कर दे। उसको ले भी नहीं पाएगा प्रिंट स्क्रीन।